Welcome to Top Crew Aviation. My name is Pipin Kumar. Today we are here to discuss about success story of Captain Devakar. Also, we would know how it took 4 years to complete his CPL. Normally, it takes only 2 years to complete it. And if we talk about airline preparation, most of the commercial pilot take at least 2 to 3 attempts to qualify, but he cleared it in very first attempt. So not only about success story, we would also discuss about all these things so that it can help all the aspiring pilots. So welcome Captain Devakar in our studio. Thank you, sir, for inviting me. You deserve it. Yeah, you deserve it because you have done wonderful job, and it was very first written interview of your life. Yes. And you killed it, man. Not only passed it in one go, so it is a really very good achievement. Yes. So we would like to know more about your journey, like when did you start and what was the motivation. So let's start, like when did you start your CPL training? I started my CPL training in 2014 from Ahmedabad Aviation and Aeronautics. Okay. So thereafter I joined AAA. Then I didn't have any guidance. Okay. First of all, I didn't have any past experience. I didn't have any personal comments on Nobody was from your family as that. well Yes, in aviation. I am the first generation pilot of my family. Oh, congratulations, man. You have done it already. So after that, I applied for the computer number Okay. by my own without any help of any flying school. So it takes 9 months. It to get- took 9 months. Oh my God. So It's a long guys, time. yeah, normally if you apply it with proper guidance, it takes maximum 2 months. Yes. So this is the difference, guys. लोग कहते हैं कि कैसे 3 साल लग जाते हैं, कैसे 4 साल लग जाते हैं CPL में, तो ऐसे लग जाते हैं. आप 1 साल कंप्यूटर नंबर में लगा दो, कोई रोक थोड़ी रहा है आपको. हाँ. राइट. सो दिस इज हाउ, बिकॉज ही वॉज नॉट अवेयर. अच्छा, बहुत सिली मिस्टेक्स होती हैं. हाँ, कभी आपने फोटो अच्छा अपलोड नहीं करा है, कभी सिग्नेचर signature ऑटोग्राफ सही नहीं दिया है. तो इस तरीके से लगता है. दिस इज योर फर्स्ट रजिस्ट्रेशन टू बिकम अ पायलट. अगर आपका कंप्यूटर नंबर नहीं आया है तो गाइज आप कितनी पढ़ाई कर लो, आपको पेपर देने से DGCA जो है अलाउ नहीं करेगा. हाँ. तो कुछ नहीं हो सकता. इवन दो आपने फ्लाइंग भी शुरू कर दी है तो वो घंटे लॉक करके घर पे रख लो. हाँ, वो कोई काम का नहीं. वो किसी काम की नहीं है टिल द टाइम यू डू नॉट गेट योर कंप्यूटर नंबर. सो it took 1 year. That's long time, I would say. Anyway, it's a part of journey. Please go ahead. Then after I start study Okay. with the help of ground classes in the AAA. अच्छा, वहीं फ्लाइंग क्लब में ही जो ग्राउंड क्लासेस थे आपने उस हिसाब से किया. फिर उसके बाद then I prepare for the technical exam, which is Okay. the toughest most exam in DDC. Yeah, You know that. after navigation. After navigation. Exactly. फिर तो उसके बाद टेक्निकल देने के बाद वो पहले फर्स्ट टाइम तो फेल हो गए. हाँ, होना ही था. क्योंकि पहले पढ़ाई नहीं की, कोई ग्राउंड स्कूलिंग नहीं की. अच्छा, लाइक बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि भाई पहले ग्राउंड स्कूल करें हाँ, या सीधे फ्लाइंग क्लब flying चले जाएं. तो लाइक मैं तो कहता ही हूँ, कई सारे वीडियोस में कह भी चुका हूँ, तो लोग हो सकता है ये कहते हों कि मैं प्रमोशन कर रहा हूँ, है ना. लेकिन एक सच आपसे जानना चाहेंगे कि फ्लाइंग क्लब में क्या क्वालिटी ग्राउंड क्लासेस हो पाती हैं? नहीं, मेरा मानना ये है कि सीधे सीधे नहीं बोल दिया. तो गाइस नहीं हो पाती हैं. रीजन, फ्लाइंग क्लब इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड ऑन फ्लाइंग. flying, हाँ, more they are concentrated on the flying basis because you are there for flying, not for ground classes. और फिर उनकी ही गलती नहीं है, वहां कोई आ रहा है कोई जा रहा है, ग्राउंड इंस्ट्रक्टर टिकते ही ground नहीं instructor है. क्यों तो टिकेगा? फ्लाइंग क्लब कहाँ से बेचारे, मतलब बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं गाइस. आई डोंट वांट टू गो इनटू डीप. ऑलराइट, सो प्लीज यू गो अहेड विद योर जर्नी. So after technical फेल हो फेल गए. फिर 3 to 6 मंथ उसको रियलाइज करने में लग गए क्यों फेल हो गए. ग्राउंड क्लास तब भी मेहनत नहीं तो करी. बहुत करी थी. सही है. तो after that then my flying school was shut down by the due to some income tax problems. लो जी,
एक और झमेला हो गया। हाँ। कंप्यूटर नंबर 9 महीने में आया, फिर फ्लाइंग क्लब बंद हो गया। तो गाइस ये कई बारी कई चीजें, अब इस पे किसी का कंट्रोल नहीं, हाँ, ये नेचुरल राइट। थिंग्स हैं। इवन अगर मैंने आपको वहां भेजा होता फ्लाइंग के लिए तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता भाई। इनकम टैक्स इज माई बाप, कम ऑन, वी कांट आस्क देम लाइक कम ऑन स्टार्ट अवर फ्लाइंग, नो। सो दीज आर समथिंग विच आर नॉट इन कंट्रोल ऑफ एनीबडी। तो गाइज इसके लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। अगर कोई चीज ऊपर नीचे हो जाती है तो हैव पेशेंस। ऐसा नहीं है कि जिंदगी खत्म हो गई है, चीजें वापस से शुरू होंगी। डिपार्टमेंट को आप अपना काम करने दीजिए। अब लेट से अगर कोई चीज, कोई भी इंसिडेंट हो जाता है किसी फ्लाइंग क्लब में, या कोई क्रैश हो जाता है, या कोई, तो डीजीसीए चाह रहा है कि भाई एक बार चेक तो करें। हाँ, प्रोसीजर अब उसमें घबराओ मत, जो भी हो रहा है आपके लिए अच्छा हो रहा है। 2-5 महीने ऊपर नीचे हो जाते हैं भाई, क्या हो गया? 2 साल में बनने थे, 2.5 साल में बन जाएंगे, हैं? तो कम से कम जो भी होगा आपके लिए अच्छा होगा। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट गाइस। इस पे किसी का कंट्रोल नहीं होता। गलत कह रहा हूं कैप्टन साहब? नहीं, बिल्कुल सही बात है। ऑल राइट, प्लीज गो अहेड। तो फिर वो गड़बड़ हो गई फ्लाइंग वो क्लब में। गड़बड़ हो गई फ्लाइंग के लिए। फिर मैंने कॉन्सेंट्रेट किया अपने पेपर्स के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल। कईयों के मतलब तरीका यही है वैसे तो, लेकिन आपको 1.5 साल बाद पता पड़ा कि यार अब तो कंसंट्रेशन पेपर पे ही करना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि उस बीच में मैंने 12 to 16 आवर्स कर भी लिए थे। 1 month each hour। Oh, very nice man. 18 months, 18 hours. 18 hours। So guys, see the performance. लेकिन देखो उसमें अच्छी बात क्या हुई कि 18 घंटे करके कैप्टन दिवाकर को ये समझ में आ गया कि भाई पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्योंकि इफ यू डू नॉट नो, इफ यू डू नॉट हैव एनी सब्जेक्ट नॉलेज, तो आपको झाइयां उड़ जाती हैं। इंस्ट्रक्टर कहता है ये क्या है, वीओआर ये क्या है, एनडीबी क्या है, इंस्ट्रूमेंट समझ नहीं आते। सो गाइज दिस इज द रीजन क्यों मैं कहता हूं कि पहले आप ग्राउंड स्कूलिंग कर लो भाई, मान जाओ। नहीं तो क्या तरीका यही है, फेल होके आओगे, आना तो पड़ेगा। अब चाहे 18 महीने बाद आ जाओ या आप सीधे आ जाओ भाई, आना तो पड़ेगा। प्लीज कंटिन्यू। तो फिर उसके बाद पेपर्स किए सेल्फ स्टडी करके, तो 1 साल उसमें चला गया। सेल्फ स्टडी आप क्यों कर रहे हो? आपको थीसिस लिखनी है या पायलट बनना है? हाँ भाई सेल्फ स्टडी करो जब आप एक बारी क्लासेस ले लो। भाई जो 15 साल से 20 साल से इंस्ट्रक्टर जो पढ़ा रहे हैं, आप वो भी तो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं 20 साल से। हाँ, तो उनकी हेल्प ले लो, थोड़े बहुत पैसे दे दो उनको। हाँ। उन्हें भी अच्छा लगेगा, तुम्हारा भी टाइम बच जाएगा। सो गाइस, टाइम इज मनी, टाइम इज मनी। सेल्फ स्टडी अच्छी बात है, सेल्फ स्टडी करते रहना। जब पेपर क्लियर हो जाए, फ्लाइंग हो जाए, एयरलाइन के लिए सेल्फ स्टडी करते रहना, है ना, वो सेल्फ स्टडी ही रहती है। बट अगेन वो हम अभी डिस्कस करेंगे इसमें। तो गाइस डोंट वेस्ट योर टाइम। एक बार ही ट्राई करो सेल्फ स्टडी के बाद, बार बार ट्राई मत करो। अगर आप टैलेंटेड हो ना तो एक ही बार में निकल जाएगा। वही वाली बात है। बार बार डीजीसीओ को चकमा मत दो वो बार बार ही फेल करेंगे आपको क्योंकि आपको उतना ही आता है। हाँ, जितना आता है। क्योंकि आप फेल हो रहे हो, हाउ कैन यू एनालाइज? यू डू नॉट हैव एनी प्रायर एक्सपीरियंस कि मैं फेल क्यों हुआ था। हाँ। अब उस मंथन में आप महात्मा मत बनो नॉलेज लो फ्रॉम द एक्सपर्ट, आप उनके रिजल्ट्स चेक करो और आगे बढ़ो। ऑलराइट, प्लीज गो अहेड। तो वही मैं कहना चाहता, सेल्फ स्टडी में पूरा 1 साल चला गया। और तो फिर भी बेटर है कि किसी गाइडेंस ले लो, किसी की हेल्प ले लो। इंस्टीट्यूट्स हैं काफी सारे आजकल, टीसीए वन ऑफ देम। एग्जैक्टली। तो 1 साल पूरा उसमें वेस्ट हो गया। फिर ऐसी फ्लाइंग नहीं हुई, 3 साल ऐसे ही चले गए आपके। फिर आरटीआर मैंने देना स्टार्ट किया, आरटीआर के साथ फ्लाइंग करना स्टार्ट करी। ओके। तो आरटीआर भी मेरा जो प्रॉपर गाइडेंस नहीं थी, क्लासेस ली थी लेकिन प्रॉपर गाइडेंस नहीं थी। ले ली, चलो सब एक साथ लेते हैं, तो अब मैंने भी ले ली। अच्छा, एक और मतलब क्वेश्चन रहता है लोगों का कि भाई चलो ठीक है, हम यहाँ बात कर रहे हैं। हाँ। राइट। अब बच्चों के सामने मुसीबत ये है कि भाई ज्वाइन कैसे करें? हाँ, भाई बहुत सारी ग्राउंड क्लासेस हैं, अब ज्वाइन कैसे करें? मेरा सजेशन तो ये है सभी को कि आप जो है किसी पे भरोसा मत करो। हाँ, एविएशन में सब किसी पे भरोसा मत करो। आप पर्सनली डेमो लो, पर्सनली मिलो, देन यू ज्वाइन। हाँ, चेक करो आराम से, अपना टाइम लो अपना। आपकी क्या राय है?
मेरा बिल्कुल यही सेम चीज़ है, अपनी तरफ से पूरा प्रिपरेशन करो कि अपने कहाँ कहाँ सही है कहाँ गलत है, फिर उसके बाद अपने ज्वाइन करो चीज़ें। बिल्कुल सही बात है, एक ये क्योंकि नहीं अब कि देखो भीड़- क्लासेस तो ले ली आरटी की, हाँ, एक बट वो भीड़ में किसी चल मतलब रहे- की नहीं रही। हाँ। क्यों? क्योंकि सब ज्वाइन कर रहे थे तो हम भी हम ले भी- लेते हैं, हाँ, मंदिर बस। का प्रसाद है बट रहा है, हम भी ले लेते हैं। सो गाइज, डू नॉट गो विद द फ्लो। हाँ देखो होता क्या है कि इंस्ट्रक्टर मेरे लिए कोई बहुत अच्छा है क्योंकि मेरी ट्यूनिंग बैठ गई है, हाँ। किसी और के लिए नहीं नहीं है, अच्छा उतना राइट? सो यू डिसाइड योर इंस्ट्रक्टर, यू डिसाइड योर इंस्टीट्यूट। आप किसी के पीछे मत जाओ, हाँ, जो कि हम करते हैं। देखो आई एम ऑल्सो इंडियन, वी ऑल आर इंडियन। हम क्या है, फ्रेंड्स के पीछे चले जाते हैं। फ्रेंड्स के पीछे चले जाते हैं, और भी बहुत सारी चीजें जिनके पीछे चले जाते हैं। तो पीछे किसी के मत जाओ भाई, आगे आगे खुद जाके देखो कि what is best for you. It really helps a lot, guys, I'm telling you. All right, please go ahead. So then after I started flying also with RTR exam. RTR also takes 7 attempts for me. 7 attempts. All right, All over 7 the into India. 2, 14 months. So this is how you waste your time, I would say. Yes. Right? So Without any guidance. without any guidance, I'm telling you. By So doing on your own things. on your own, मत करो भाई, because you are not expert. फिर उसके बाद अपना CPL खत्म हो गया 2018 में। 2018 फेब तक। तो ओवरऑल सी, अगर प्रॉपर तरीके से करते, नॉर्मली लाइक इन अवर इंस्टीट्यूट, जैसे कोई भी फ्रेश बच्चा ज्वाइन करता है, फ्रेशर, तो दो महीने में उसका कंप्यूटर नंबर आ जाता हाँ। है ना? और व्हाट वी डू लाइक एट द सेम टाइम यू स्टार्ट योर क्लासेस। Classes also. क्लास 2 मेडिकल भी हो जाता है, Class में। पता ही नहीं पड़ता, बिकॉज ऑल दी मेडिकल एग्जामिनर्स आर विद अस, वी हेल्प देम, दे हेल्प अस. Yeah, obviously. So this is how things keeps going on in a smooth direction. क्योंकि बच्चों को नहीं पता कंप्यूटर नंबर क्या है, हाँ, वो कैसे सोचते हैं लेना कोई है। कंप्यूटर का नंबर होगा. हाँ बस। But this is something very Very important for your life. Lifelong. Lifelong. It would be same for the medical file number. So normally guys, this is how I would recommend, as he suggested you also. It could complete within 18 to 24 months. एक तो अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांस रही, बाकी की हमारी खुद की गलतियां रही, हमने सेल्फ स्टडी पर जोर दिया, हमने पहले ग्राउंड स्कूलिंग नहीं ली, हम सीधे ही फ्लाइंग क्लब में चले गए, तो 4 साल लग गए पूरे। अदरवाइज ये हम 2 साल में कर सकते थे। 2 साल में। अब बात यहीं खत्म नहीं हुई है। अब इसके बाद जब इन्होंने ही जॉइंड अस बैक इन 2018 फॉर एयरलाइन प्रिपरेशन, राइट? तो देखो कंप्यूटर नंबर में इन्होंने लगाए 9 महीने, आरटी में लगाए 14 महीने, और एयरलाइन का एग्जाम इन्होंने एक बार में निकाल दिया। कमाल की बात है भाई। सो कंग्रेचुलेशंस कैप्टन so much. Devakar, and see, this is not a small thing. He nailed interview, written, compass test in one go because we were guiding him. A team of experienced pilot were guiding him. कि भाई कैसे क्या करना है. He is very brilliant student. एक बार बता दो, टक सीधी लैंडिंग हो जाती है. Flying skills are very nice of Captain Devakar, I'm telling you. And सिमुलेटर का कीड़ा है ये लड़का. आप बिठा दो, सारी रात जहाज उड़ता रहेगा, खाना पीना वहीं लाओ दो, नहीं लाओ मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता. So he is very good in flying. Like flying is his passion. I have seen it on simulator. He practices like anything. I love it. And वो ही एक रीजन रहा है कि एक बार में कोई कंपास टेस्ट में कोई दिक्कत नहीं एयरलाइन के. अब भाई नॉलेज तो है ही है, सेल्फ स्टडी भी तो करी थी 9 महीने. हाँ. और ऐसी बात नहीं है कि उसका इम्प्रूवमेंट होता है. फिर भी गाइडेड हिम कि भाई कैसे आपको करना है, कैसे क्या आपको पढ़ना है, क्या आपको नहीं पढ़ना. तो आप ये सोचो, जो बंदा कंप्यूटर नंबर में गड़बड़ कर गया, आरटी में गड़बड़ कर गया, 4 साल में सीपीएल लिया और एयरलाइन प्रिपरेशन में एक बार में सारा. सो दिस इज द डिफरेंस. अब ऐसा नहीं है कि एयरलाइन अच्छा, एक और सबसे बड़ी गलती बच्चे क्या करते हैं कि हम 60 लाख रुपए लगा देते हैं. हाँ. लेकिन जब एयरलाइन प्रिपरेशन की बात आती है तो 60,000 रुपए नहीं लगते. हाँ, 60,000. बोले नहीं अब तो ये तो मैं खुद ही कर लूंगा, ये ज्यादा ले रहे हैं, ये 30-35 हजार में होनी चाहिए ये, बिकॉज अब हम कप्तान बन गए हैं. तो जस्ट टू रियलाइज कि भैया वो 60-70 हजार दे दो किसी इंस्टीट्यूट को, वो आपको गाइड कर देंगे. अच्छा, वो भी हम क्या करते हैं, वैकेंसी निकल गई, रोज रोज तो आती नहीं है. अब एक वैकेंसी अगर आपकी निकल गई
just because of these silly mistakes, not joining any institute, not getting guidance from proper people. ये कोई इंस्टीट्यूट की जरूरी नहीं है, अगर किसी आप एक्सपीरियंस पायलट के गाइडेंस से आप कर लोगे। अच्छा पता है इंस्टीट्यूट में क्या हो जाता है कि एक ग्रुप बन जाता है, हाँ एक तरह से ग्रुप बना 15-20 लोगों का, आप साथ प्रिपेयर कर रहे होते हो, तो इट इज नॉट अबाउट यू ओनली। बाकी के 19 बच्चे जो गलतियां करते हैं उनकी गलतियां भी आपको पता पड़ जाती हैं हाँ। कि व्हाट आर देयर मिस्टेक्स, सो यू डू नॉट मेक so देम, you can correct them you can correct it on yourself as well. Yes. So this is how 2-5% का फर्क होता है एयरलाइन में। बिल्कुल भाई आपके 70 थे, आपका नहीं हुआ, 72 पे 5 लड़के सेलेक्ट हो गए, तो आप फेलियर नहीं हो, लेकिन मेरिट लिस्ट से आप आउट हो। एक वैकेंसी लूज करने का मतलब समझ रहे हो आप? अब पता नहीं अगली कब आएगी, लेट्स से 3 महीने बाद आई, 3 महीने की सैलरी पता है पायलट की? तो हम मान लो 2 लाख रुपए एवरेज लेते हैं, तो 6 लाख रुपए हम नुकसान कर सकते हैं, पर देखो 60,000 नहीं देंगे। और जिसमें टाइम भी गया, जिसमें टाइम भी गया, फ्रस्ट्रेशन भी गया, साथ वाला अगर सिलेक्ट हो गया तो गड़बड़ हो गई। तो और ज्यादा डिमोटिवेटिंग। फिर क्या है कि और सबसे अच्छी बात गड़बड़ कहाँ होती है, यू वर गुड इन फ्लाइंग्स, यू क्लियर्ड ऑल योर पेपर इन 1 अटेम्प्ट, बट एयरलाइन में पड़ोसी का सिलेक्शन हो गया। तो उस केस में क्या लगता है कि तब तक तो अपन ऐसे थे, हाँ फिर क्या, अरे। सो गाइस, जब यहां तक पहुंचे हो तो अंत तक एक्सपर्ट की गाइडेंस लोगे तो इट विल हेल्प यू। एग्जाम्पल इज इन फ्रंट ऑफ यू, he has selected now in Indigo as a junior first officer, and you would be joining within couple of months. Yes, couple of Already done with all the formalities. Yes. कंपनी मेडिकल हो गया है, सब कुछ हो गया है, अब तो पीली चिट्ठी बाकी है। Now he's going to get his induction letter, I would say, very soon, and he would be flying on Airbus 320. So look at him, guys. So how are you feeling? Like, what was your first reaction? Like, once you got an email from the airlines कि भाई हो गया, कैसा लगा था उस समय? बिल्कुल बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, एकदम काफी रिलैक्स, काफी टाइम तक तो उसको जैसे रिलैक्स करने में या बिकॉज आई नो आई हैव फेल्ट इट। Yeah. तो ऐसा लगता है कि जिंदगी में ना जिस दिन एयरलाइन के सिलेक्शन का ईमेल आता है आपके पास, तो आप इतने लाइट हो जाते हो, क्या रिलैक्स्ड एकदम, कि अब तो कुछ बचा ही नहीं जीवन में, सब कुछ प्राप्त कर लिया हमने। हालांकि बहुत कुछ बाकी है, बट कुछ पलों के लिए One step to go. Exactly. But again, this is really very important, and this, I would say, kind of grand celebration. This is what I have used this word couple of times. जब आपका एयरलाइंस में होता है तो बात ही अलग हो जाती है, आप रिलैक्स हो जाते हो, अब तो हो जाएगा सब कुछ। एयरबस, टाइप रेटिंग, बोइंग, एटीआर, अरे होता रहेगा, पैसा दे देंगे। कोई दिक्कत नहीं है। So guys, now he is Captain Divakar. He would be joining as a junior first officer on Airbus, and within couple of years he would be captain on Airbus. So again, अभी एक स्टेप बाकी है, TCA would help him to clear his ATPL exam as well. Yes. अच्छा, वो भी अब 9 महीने नहीं लगाएंगे ना, 1 साल सेल्फ स्टडी करेंगे। आप कप्तान हो, आप जहाज उड़ाओ, जब भी आपको जरूरत है we will help you and clear your ATPL exam in one go. Yeah. तो ये होगा, फिर तो ये कप्तान हो गए, अब इन्हें हमारी जरूरत नहीं है, तो फिर ये आपकी हेल्प करेंगे, आपसे मिलेंगे। सो दिस इज हाउ वी हेल्प ईच अदर गाइस, दिस इज व्हाट द एविएशन community. Yes. Okay, so he didn't get a chance to attend any TCA meet yet, so very soon we are going to arrange TCA meet 3, and then we are going to meet with all the old students which are doing very well in aviation industry. Anything else? What else you would like to give a message to the aspiring pilots, those who are looking this interview, as per the recent situation of aviation? रिसेंट सिचुएशन से मैं कहना चाहूँगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपके पास अगर गाइडेंस नहीं है, गेट द गाइडेंस फर्स्ट। ओके, गेट द एक्सपर्ट। गेट द एक्सपर्ट। कोई भी हो, ये कोई इंस्टीट्यूट का नहीं है, आपका पड़ोसी हो, आपके सिटी में हो, और आप कोशिश करेंगे तो अच्छा बंदा आपको मिल जाएगा। तो एक मेंटोर की बहुत जरूरत होती है, एविएशन में बहुत ज्यादा जरूरत है, सेल्फ नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें कई पड़ाव हैं, आपको तो पता ही नहीं है। हाँ। अब जैसे हम फ्लाइंग पे पहुंच जाते हैं,
हमें लगता है कि 200 ही घंटे हैं, उसमें फिर हम फेल हो जाते हैं कि हमसे तो चेक रेडी पास नहीं हो रही। बिल्कुल वो सही बात चेक्स नहीं होते तो बहुत कुछ है इसमें गाइस, एक्सपर्ट की बहुत बहुत ज़रूरत है, आई एम टेलिंग यू। है। So you cannot give up on this aviation field also, because this is very hard because of financial conditions, because of the if you flying another country you have weather conditions also. तो काफी टाइम इसी चीजों में निकल जाता है कि हमें पता ही नहीं रहता हम क्या करना है क्या नहीं करना है। Exactly. और सीपीएल के बाद भी लोग ब्लैंक हो जाते हैं, अब ब्लैंक क्या। हो जाता, अब क्या, हाँ हाँ, क्योंकि एयरलाइंस तो आएगी जब अपने टाइम पे आएगी। आएगी, वो तो अपने हिसाब से आएगी, वो तुम्हारे हिसाब से तो नहीं हाँ, आएगी। जब भी सही बात वैकेंसी आती है फिर वैकेंसी कई बार कम भी आती है, कई बार ज़्यादा भी आती है, तो कंपटीशन वहाँ भी ज़्यादा है भाई है। और आपने उस चक्कर में इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं किया, कोई अच्छा इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं किया। और एक और सजेशन है, आई थिंक कैप्टन दिवाकर वुड ऑल्सो एग्री विद मी, कि देखो सीपीएल होने के बाद यू स्टार्ट योर स्टडी, यू कीप डूइंग दैट, वेट मत करो वैकेंसी का, वैकेंसी तो कभी भी आ जाएगी। और आजकल तो चकमा दे रही है एयरलाइंस, 10 दिन पहले वैकेंसी निकाली, 10 दिन बाद पेपर है, सो दे वांट टू चेक हु इज सीरियस। उन्हें पता है कि जो मस्ती कर रहा है उसे मस्ती करने दो, जो सीरियस है वो पढ़ रहा है उसका सिलेक्शन हो जाता है। फिर हम कहते हैं कि मेरी फ्लाइंग अच्छी थी पर मैं रिजेक्ट हो गया। सो दिस इज हाउ यू हैव टू प्लान अहेड ऑफ एवरीबडी, देन ओनली यू गेट सिलेक्टेड। That's why you are pilot also. You have to think ahead. You have to think ahead, like हमारे इंस्ट्रक्टर्स भी बोलते थे keep thinking what next. What next? So you keep thinking in your life what next. What next? Yeah, very nice pilot language used by us. नहीं any other suggestion you would like to give? Don't give up. Oh, don't give up, very powerful word. Definitely don't give up, you have to land the plane. नहीं, बहुत अच्छा, and thank you so much to give us your precious time. आपको कभी मिलेंगे आपकी इंडिगो की फ्लाइट में, बिल्कुल। फिर मुलाकात करते हैं कॉकपिट में। कुछ बच्चों के लिए, he is from Jaipur guys, if you are from Jaipur I can arrange meeting with him, no problem at all. He is very humble and kind personality, I'm telling you, he is gonna be very good asset for Indigo, trust me. He is very good pilot, in terms of flying he is awesome, I'm telling you. So we at TCA wish you all the best. Once again, thank you so much to give us your precious time, Captain Dibakar. Thank you so much, you too. And all the best. Thank you. Bye bye.